کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لڑکے اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتہ، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نام زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان سے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لڑکے اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتہ، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نام زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان سے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी
जो मुसलसली की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़की के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसली की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़की के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसली की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया
और कहा माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने ज़ैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि ज़ैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने ज़ैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि ज़ैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी
دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر اسے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتا، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو، فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نیم زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر اسے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتا، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو، فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نیم زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا
जो इसने आयशा से कहते। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया, ये क्या हो रहा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने ज़ाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है, मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने ज़ैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि ज़ैद एक और लड़की के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहते। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया, ये क्या हो रहा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने ज़ाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है, मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने ज़ैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि ज़ैद एक और लड़की के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहते। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया, ये क्या हो रहा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने ज़ाहिर कर दी
اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتہ، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نیم زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان سے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتہ، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نیم زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے